Good morning students, this is part 5 of chapter Measurement and Motion, class 6th, science book Horizon. Now the topic in the last video I have discussed about translational motion. Now the types of translation motion and how many types of translational motions are there. So there are two types, fine. One is the rectilinear motion and other is the curvilinear motion. So translational motion can be further categorized into rectilinear and curvilinear motion. So what do you mean by rectilinear and the curvilinear translation motion? So when an object in translation motion moves in a straight line, जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशन मोशन में सीधा चले या सीधा मूव करे, इट इज़ सेड टू बी इन अ रेक्टिलिनियर मोशन. बट व्हेन इट मूव्स अलोंग अ कर्व, बट अगर कोई सब ऑब्जेक्ट जो है कर्व के अलोंग मूव करे, देन इट इज़ सेड टू बी इन द कर्विलिनियर motion. Now for example, you can see this is a car. This car is moving straight on the road, so this car is having the rectilinear motion. But when you throw a ball at an angle, like this boy is throwing the ball in a basket and this ball is thrown at some particular angle, so this ball has the curved path or somewhat circular path, so it is said to be in a curvilinear motion. For example, if I ask, see if there is a path, straight road, then there is a turn and then again straight road. And if I say on this straight road the car is driving, basically the car is moving, so three paths are there, 1, 2 and 3. So A path, B path and the C path. If I ask what will be the translation motion in the case of A, B and the C part. So in the A part, because the car is moving straight, here it is having the rectilinear translation motion. In case of B, now the path is slightly curved, so here the motion is curvilinear. And in the case of C part, you are again the car has become straight, so this is the rectilinear motion again. Fine. Now for example, now examples are given. A car moving along a straight path is in rectilinear motion, but a ball thrown at an angle in the air follows a curved path and it is said to be in the curvilinear motion. Now next is the rotational motion. Now rotational motion, you can see in figure 11.8, there is a rotational motion of an earth. The object moves about an axis in such a way that all its parts make circle around the axis. It is saying कि ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव कर रहा है अपनी एक्सिस के अराउंड कि जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट का पार्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट का जितना भी पार्ट है वो सारा का सारा एक्सिस के अराउंड क्या बनाएगा, सर्कल बनाएगा. सो ऑब्जेक्ट मूव्स अबाउट एन एक्सिस इन सच अ वे कि उसके जितने भी पार्ट्स हों, ऑल इट्स पार्ट्स, इट मेक्स सर्कल अराउंड द एक्सिस. इफ इट इज़ द एक्सिस and the substance is moving in a circular path, then this object is basically making the circle around the axis. So when an object undergoes rotational motion, different parts of it move by different distances in a given time. So जब कोई चीज़ आपकी रोटेशनल मोशन में होती है, उस केस में ऑब्जेक्ट के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो गिवन टाइम में डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर करते हैं. जैसे ट्रांसलेशन में क्या था, गिवन टाइम में उसके सारे पार्ट्स एक ही सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे थे, बट रोटेशनल मोशन में जो ऑब्जेक्ट के पार्ट्स हैं वो सेम टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कवर करते हैं. सो एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट शो रोटेशनल मोशन आर द आर्म्स ऑफ अ क्लॉक. अगर आप क्लॉक की आर्म्स को देखें तो एक रोटेशनल मोशन है. अ सीलिंग फैन को देखें, रोटेशनल मोशन है. द व्हील्स ऑफ अ मूविंग व्हीकल, इट इज़ अगेन अ रोटेशनल मोशन. एंड अ स्पिनिंग टॉप, और आप लट्टू देखें तो वो भी क्या है, एक रोटेशनल मोशन के अंडर है. फाइन. नाउ इट इज़ द वर्ड हेल्प. एक्सेस, इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन अराउंड विच एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स. एक्सेस क्या है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसे हम मान के चलते हैं कि ये कोई इमेजिनरी लाइन है जिसके अराउंड ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है या घूम रहा है. फाइन. So these are the rotational motion and the translational motion. Now next is the activity which is mentioned here. So what is this activity is about? It is saying object undergoes rotational motion. Different parts of it move by different distances in a given time. अब हमें ये दिखाना है कि कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन में अगर है तो उसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं डिफरेंट डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इन ए गिवन टाइम. सो सोर्सेज हमें क्या क्या चाहिए, एक हमें चार्ट पेपर चाहिए, 3 स्केच पेन्स चाहिए डिफरेंट कलर्स के, एक हमें टेप चाहिए, एक हमें चाहिए पीस ऑफ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग का पीस चाहिए हमें, और सेकेंड इट इज़ सेइंग अ डोर, और एक दरवाज़ा चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे ये दरवाज़ा है जहाँ पे हम आप देख सकते हैं. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, मेथड क्या है, स्प्रेड आउट दी चार्ट पेपर अंडर द डोर. डोर के नीचे आपने चार्ट पेपर स्प्रेड कर दिया. एंड फिक्स द न्यूज़पेपर इनटू द फ्लोर, और जो वो न्यूज़पेपर टू द फ्लोर विद द एडहेसिव टेप. और हमने क्या किया, हमने न्यूज़पेपर को फिक्स कर दिया फर्श पे विद द एडहेसिव टेप. फाइन. नाउ शट द डोर एंड यूजिंग द एडहेसिव टेप स्टिक द 3 स्केच पेन्स A B C. अब कह रहा है कि
Now spread the chart paper under the door and fix the newspaper to the floor using the adhesive tape, and shut the door using the adhesive tape. Stick the 3 sketch pens A, B, C to the door. Sketch A near the hinge, B in the middle, C near the outer edge. So in a such a way that the tips just touch the chart paper. So this is the chart paper. आपने यहाँ पे 3 मार्कर लगा दिए. मार्कर्स को हमने adhesive tape से दरवाजे पे लगा दिया. So when you are moving the door, what is happening? This A point, B point and C point, ठीक है ना. आप दरवाज़ा आप मूव कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, तो सॉर्ट ऑफ अ सर्कल मोशन है यहाँ पे. तो दरवाजे पे आपने 3 स्केच पेन्स लगाए एंड दरवाज़ा इफ इट इज़ मूविंग, अगर दरवाज़ा पूरा 180 डिग्री रोटेट कर जाए तो सर्कुलर मोशन हो जाएगा. सो इट इज़ सॉर्ट ऑफ लिटिल बिट, सो यू कैन से देयर इज अ कर्व्ड पाथ. सो दिस इज रोटेशनल और दी रोटेशनल मोशन, इट इज़ फॉर्मिंग अ सर्कल. सो दरवाज़ा जैसे बंद करेंगे तो मार्कर तीनों आपके चार्ट पेपर पे चल जाएंगे, और मार्कर आप देखेंगे डिस्टेंस तीनों का अलग है. ए का स्मॉल सर्कल, बी का थोड़ा बड़ा, सी का और भी बड़ा. So now open the door gently. You will see that 3 sketch pens makes curved line on the chart paper, and use the string and a ruler to measure the length of the 3 curved lines. और रूलर से आप या मेजरिंग टेप से आप क्या कर सकते हैं, इन 3 कर्व लाइन्स की डिस्टेंस निकाल सकते हैं. तो तीनों की अलग आएगी, जबकि दरवाज़ा मूव कर रहा है बट दरवाजे के जो पार्ट्स हैं वो गिवन टाइम में डिफरेंटली मूव कर रहे हैं या डिफरेंट डिस्टेंस पे मूव कर रहे हैं. सो दैट इज़ दी बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसलेशन एंड द रोटेशनल. ट्रांसलेशन में आपका जो ऑब्जेक्ट है गिवन टाइम में उसके सारे पार्ट्स सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, बट रोटेशनल मोशन में जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर नहीं करता. जैसे आप देख सकते हैं कि डोर में आपने जब 3 मार्कर्स लगाए एंड मार्कर्स जब जैसे ही वो उस चार्ट पेपर पे चले, जैसे ही डोर आपने बंद किया वो तीनों मार्कर्स चार्ट पेपर पे चल पड़े, और उससे जो भी सर्कल में बना वहाँ पे छोटा सा पार्ट जो भी सर्कुलर पाथ बना वो डिफरेंट था, क्योंकि जब आप इन सर्कुलर पाथ्स की लेंथ निकाले यूजिंग द मेजरिंग टेप तो लेंथ वहाँ पे तीनों की अलग आएगी. सो यानी कि यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स जो हैं गेट के वो डिफरेंट डिस्टेंस जो है कवर कर रहे हैं इन अ गिवन टाइम. Now the discussion and the conclusion is that the hinge of the door acts as an axis around the which the door rotates. अब जो hinge है डोर का, फाइन, वो क्या कर रहा है, वो एज एन एक्सिस एक्ट कर रहा है. जैसे ही डोर रोटेट करेगा इट विल एक्ट एज एन एक्सिस. You will observe is that the arcs made by 3 sketch pens are of different lengths, and the length of the arc made by 3 sketches are in this order A, B and C. तो A, B, C की ऑर्डर में हम देख सकते हैं कि 3 स्केच से मार्क बना है, and this shows us that the different parts of the door move by different distances in the same time period. So this is the thing which have to prove it, that in the rotational motion जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके पार्ट्स एक गिवन टाइम में डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं. फाइन. नाउ नेक्स्ट इज़ द पीरियोडिक मोशन. अगेन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या है कि वो मोशन जो बार बार रिपीट हो. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू से कि आप रोज़ सुबह स्कूल आते हैं, फिर घर जाते हैं, फिर सुबह 8 बजे स्कूल आते हैं, 2 बजे घर जाते हैं, फिर 8 बजे स्कूल आ रहे हैं, 2 बजे घर जा रहे हैं, तो यू आर रिपीटिंग दैट थिंग अगेन एंड अगेन, फाइन, इन योर रूटीन. सो जो मोशन एक इंटरवल के बाद रिपीट हो जाए या एक टाइम के बाद रिपीट हो जाए उसे हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन. जैसे कि क्लॉक में अगर एक बार 12 बज गई तो 12 घंटे बाद फिर 12 बज जाएगी, 12 घंटे बाद फिर 12 बज जाएगी, मतलब एक टाइम इंटरवल के बाद वो चीज़ फिर से रिपीट हो रही है. तो जो चीज़ एक टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो दैट इज़ द पीरियोडिक. फाइन. और नॉन पीरियोडिक जो रिपीट ना हो. सो नाउ पीरियोडिक मोशन देखते हैं. मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड द पीरियोडिक मोशन. जो ऐसा मोशन जो अपने आप को एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट कर दे उसे हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं. एग्जांपल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन आर द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पेंडुलम. पेंडुलम का टू एंड फ्रो मोशन बार बार आगे पीछे जाता है, वो एक टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है. द रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस, द मूवमेंट ऑफ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एंड द plucked string of a musical instrument. So all these shows the periodic motion, the motion which repeats itself after a certain interval of time. Now next is the non-periodic motion. A motion that does not repeat itself at regular interval of time is called the non-periodic motion. अब वो मोशन जो अपने आप को एक टाइम के बाद रिपीट ना करे उसे हम नॉन पीरियोडिक मोशन बोलते हैं. एन एग्जाम्पल इज ए बटरफ्लाई विजिटिंग अ गार्डन. तो एक बटरफ्लाई अगर गार्डन में विजिट कर रही है तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि वो अगले दिन भी उसी टाइम पे विजिट करेगी. फाइन. दैट इज़ बटरफ्लाईज चॉइस. फाइन. सो वो मोशन जो रिपीट ना हो एक सर्टन टाइम के बाद या इंटरवल के बाद उसे हम बोलते हैं नॉन पीरियोडिक मोशन. Now that we have read about the different types of motions, it is important to understand that in real life an object that is moving often exhibit more than one type of motion. तो बहुत ज़रूरी है समझना कि रियल लाइफ में जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके पास मूव करते हुए एक टाइप से ज़्यादा की मोशन रहती है. फाइन. फॉर एग्जाम्पल अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ. अगर कोई कार स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है तो उसके पास रेक्टिलिनियर मोशन है, बट इट्स व्हील आर इन द रोटेशनल मोशन, जबकि उसके व्हील्स तो रोटेशनल मोशन में है. तो
बहुत बार मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि जब कोई चीज़ मोशन में हो तो मोशन में वहाँ पे एक से ज़्यादा टाइप्स ऑफ मोशंस प्रेजेंट रहते हैं. तो इट इज़ गिविंग द एग्जांपल ऑफ कार, दैट कार इज़ मूविंग, देयर इज़ अ रेक्टिलिनियर मोशन बट इट्स व्हील्स आर इन द रोटेशनल मोशन. फाइन. एंड द मूवमेंट ऑफ अर्थ की अगर हम बात करें, मूवमेंट ऑफ अर्थ जो है अबाउट हिज एक्सिस है, रोटेशनल मोशन है, बट मूवमेंट ऑफ अर्थ आपका पीरियोडिक मोशन भी है, बिकॉज अर्थ जो है 365 डेज लेती है सन के चारों ओर चक्कर काटने के लिए या एक राउंड लगाने के लिए, और अपनी एक्सिस पे 24 आवर्स लेती है, दैट इज़ फिक्स्ड. सो हर 24 घंटे बाद दिन रात आपकी चेंज होती रहती है. फाइन. सो दैट इज़ द पीरियोडिक मोशन. तो अर्थ के पास 2 मोशन है, पीरियोडिक एज वेल एज the rotational motion. Now can you think of more such examples? क्या आप और ऐसे एग्जाम्पल सोच सकते हैं? यस, बिल्कुल सोच सकते हैं. You can think of that much examples in your daily life. और भी एग्जाम्पल्स आप सोच सकते हैं. तो दैट इज़ दी टास्क फॉर यू कि आप अपने सराउंडिंग्स में, अपने घर में या बाहर कुछ भी ऐसी मोशंस देखें जो रेक्टिलिनियर हो, कर्विलिनियर हो, पीरियोडिक हो, नॉन पीरियोडिक हो. फाइन. सो दैट विल इंक्रीज दी basically that will give you the application part of this chapter. So this is it. This is the ending of the chapter.